सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दी खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 20 नवंबर है ते दिन शनिचरवार है। खबरां दे विस्तार तो पहलां तुहानूं खास ते वड्डियां खबरां दस दिंदे हां। सब तो वड्डी खबर जिहड़ी एक दिन पहलां गुरु नानक साहिब दे प्रकाश पुरब मौके आई वो खेती कानून वापस लैण दे फैसले दी आई। मोदी सरकार ने तिन्ने खेती कानून वापस लैण दा ऐलान कर दिता है। आउंदे सैशन दे विच प्रक्रिया हैगी है जिहड़ी वो पूरी करन दा वादा कीता गया है। किसानां दे संघर्ष मूरे केंद्र सरकार ने गोडे टेक दिते ने। प्रधानमंत्री ने किसानां नूं अंदोलन खत्म करन दी अपील कीती, पर किसान मोर्चे ने फैसला लिया है कि संघर्ष हाले जारी रहेगा। असीं भी ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पहुंचे, कल रात किसानां दे नाल गलबात कीती तां उन्हां दा यही फैसला है कि जदों तक लिखती तौर ते भरोसा कानून रद्द होण दा नहीं मिलदा असीं पूर्ण भरोसा सरकार ते नहीं कर सकदे, उदों तक असीं इत्थे बैठे रहांगे क्योंकि साडीआं होर भी कई मंगां ने। हालांकि किसानां ने खुशी दा प्रगटावा कीता है, पर असली खुशी उदों ही मनाई जावेगी जदों खेती कानून रद्द होण दी जिहड़ी लिखती गारंटी उन्हां दे हत्थ दे विच आ जावेगी। कह सकते हैं भी मतलब ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦਿਸਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਬਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਕੱਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਭੈਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗੇ ਰੋਟੀ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ MSP ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੁਣ? ਵਾਪਸ ਭੈਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਾਣਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭੈਣੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਦਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਬਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਖੜੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਕੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ PM ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਗਰਮੀ ਠੰਡ ਮੱਛਰ ਚੂਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਨੋਬਲ ਢੇਕਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੜਕੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਭੈਣੇ ਸੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। मोदी सरकार के ऐलान तो बाद सब ने इस फैसले का स्वागत किया, पर मोदी सरकार का धन्नवाद किसी ने नहीं किया अते इसनूं किसानां दी जित दस्सिया, संघर्ष की जित दस्सिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानां नूं अपना अंदोलन खत्म करन दी अपील की है। BJP ने बारी बारी यही कहा है, हर लीडर ने जिथे प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का स्वागत किया है उत्थे यह भी कहा है कि किसानां दे भले लई फैसला लिआंदा सी, पर असीं किसानां नूं समझा नहीं सके। मोदी सरकार दे इस फैसले ते कंगना रनौत ने फिर जहर उगलिया ते सरकार दे इस फैसले नूं शर्मनाक दस्सिया है। खेती कानून रद्द होण ते विदेशां दे विच वसदे भाईचारे दे विच भी खुशी दी लहर है। किसानी संघर्ष दे शहीदां नूं सजदा कीता गया है। आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन दे विच जिथे किसानां दे हक विच, किरतियां दे हक दे विच खुशी मनाई गई, उत्थे ही हर मुल्क दे विच खुशियां मनाईयां गईयां अते संघर्ष दी एके दी जित करार दिता गया।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨੀ ਯੋਧੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਉਹ ਚਮਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1-2 ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚਿਹਰਾ DS ਪਟਵਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 18,700 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ 17,000 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ 18,700 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18,700 ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,700 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 17,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ 17,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 75% ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2,000 ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 17,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। पंचायत श्री
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜੇ ਗਏ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਅਸਾਵੀਂ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। आखिरकार मोदी सरकार झुक गई है, मोदी सरकार की अड़ी भन्नी गई है तो मोदी सरकार ने खुद काले कानून वापस लैण का ऐलान कर दिता है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश तो माफ़ी मंगदियां खेती कानून वापस लैण का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार 3 खेती कानून, विवादग्रस्त खेती कानून जिन्होंने किसान काले कानून कहते हैं, उन्हां तो अपने पैर पिछे खिंच लए ने। देश तो माफ़ी मंगदियां कानूनां नूं रद्द करन अते घट्टो घट्ट समर्थन मुल MSP है जिहड़ी उस दे नाल संबंधित मुद्दिआं दी घोख दे लई कमेटी बनाउण दा ऐलान कर दिता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुरु नानक साहिब दे प्रकाश पुरब दे मौके ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। मोदी ने कहा कि अज देशवासियों तो माफ़ी मंगते हुए मैं सच्चे मन नाल कहना चाहता कि शायद साडी तपस्या दे विच कोई कमी रह गई होवेगी, जिस करके दीवे दे प्रकाश वर्गे सच नूं असीं कुछ किसान भरावां तक पहुंचा नहीं सके। यानी कि रद्द करन दे ऐलान समय भी प्रधानमंत्री मोदी दे शब्द टेढ़े सीगे। उन्होंने किते ना किते किसानां नूं इह कहा है कि साडे वल्लों लिआंदे कानून सही सीगे पर तुहानूं मंजूर नहीं आए, इस करके असीं ये कानून वापस लै रहे हैं। अपील की है कि दिल्ली ਦੀਆਂ सरहदां ते अंदोलन कर रहे किसान आपो अपने घरां नूं वापस मुड़ जाण। मोदी ने कहा कि साडी सरकार ने किसानां, खास तौर ते छोटे किसानां, खेतीबाड़ी खेतर दे हित ते पिंड ते गरीबां दे सुनहरे भविख दे लई पूरी सच्चाई ते नेक इरादे दे नाल 3 कानून लिआंदे गए सी, पर साडियां सारियां नेक कोशिशां दे बावजूद असीं किसानां नूं समझा नहीं सके ते मैं हुण सारे मुल्क नूं दसदा कि असीं खेती कानून रद्द करदे हां। कहंदे असीं किसानां दे तर्क नूं समझण विच भी कोई कसर नहीं छड्डी ते उन्हां नूं समझाउण दे विच भी कोई कसर नहीं छड्डी, पर कुछ किसान समझ नहीं सके। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐलान उस वक्त आया जदों सारी दुनिया दे विच, खास तौर ते सिख भाईचारा, पंजाबी भाईचारा गुरु नानक साहिब दे प्रकाश पुरब दीआं खुशियां मना रहा सी। अरदासां दे वक्त जदों लोकां नूं ये खबर मिली तां सारे पासे खुशी दी लहर दौड़ गई। ये गल बड़ी देखण वाली मिली है कि प्रधानमंत्री मोदी का धन्नवाद शायद बहुत घट लोगों ने किया है। सारियां दे मूँह चों यही गल निकल रही है कि किसानां दे संघर्ष की जित हुई है, किसानां दे एके दी जित हुई है। संयुक्त किसान मोर्चे ने स्वागत किया है, लोगों ने स्वागत किया इस फैसले का, पर इस नूं संघर्ष की जित दस्या है। सियासी गलियारियां दे विच वड्डे जिहड़े ऐलान ने, इस ते रिएक्शन ने वो आ रहे ने ते नाल ही लोग जश्न भी मना रहे ने। किसान मोर्चों के उत्ते भावें जिहड़े मौत हुई है किसानां दी, 700 के करीब किसानां दी जानां चलियां गईयां ने, उन्हां नूं भी याद किया जा रहा है, उन्हां दी कुर्बानी नूं सलाम किया जा रहा है। नाल खुशियां ने जिहड़ियां वो मनाईयां जा रहीआं ने, चेहरे दी खुशी है जिहड़ी वो सारिआं दे दिख रही है।
किसान मोर्चे ने की कहा वो भी तुहानू दस दिंदे आ। किसान मोर्चे ने फैसले का स्वागत किया पर नाल ही ये ऐलान कर दिता है कि जदों तक कानून रद्द नहीं होणगे लिखती तौर पर उदों तक असीं मोर्चियां तो घर नहीं जावांगे। उन्होंने कहा कि गुरु नानक साहिब के प्रकाशपुरब मौके केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, इसका स्वागत असीं करते हाँ, पर जदों तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुंदी रद्द करन दी उदों तक असीं उड़ीक करांगे ते ये साडे लंबे इतिहासिक अंदोलन की इतिहासिक जित होएगी। कहते हालांकि 700 के करीब किसानों की जान जा चुकी है। लखीमपुर खीरी दे विच जिहड़े कतल होए ने वो जिहड़ियां टालणयोग मौतां सी जिन्हां नूं टालिया जा सकदा सी उहदे लई भी मोदी सरकार जिम्मेदार है। फैसले का स्वागत तो करते हैं पर हुण तक जो साडे नाल होया उहदे लई भी सरकार जिम्मेदार है। नाल ही मोर्चे ने प्रधानमंत्री नूं याद दिवाया कि किसानां दा अंदोलन सिर्फ ते सिर्फ 3 खेती दे काले कानूनां नूं रद्द करवाउण तक नहीं सीगा। असीं सारियां फसलां दे उत्ते MSP दी मांग कर रहे हैं, कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। ये मांग साडी लटक रही है। बिजली सोध बिल वो भी वापस लैना पवेगा। सारियां गतिविधियां नूं असीं नोट करते रहांगे। असीं मीटिंग करांगे आउंदे दिनां दे विच अते अगले फैसलिਆਂ ਦਾ ऐलान करांगे। किसान लीडर राकेश टिकैत उन्होंने कहा कि उस दिन का इंतजार करांगे जदों तक संसद दे विच कानूनां नूं रद्द किया जाएगा, उदों असीं बॉर्डरां तो जावांगे, उन्हां चिर असीं मोर्चियां ते डटे रहांगे। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और MSP की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की MSP पे कोई खरीद नहीं होती। MSP का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है, उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। किसान लीडर बलवीर सिंह राजेवाल ने भी यही कहा कि पार्लीमेंट दे विच जिन्ना चिर रद्द नहीं हुंदे उन्ना चिर तक असीं घरे नहीं जावांगे। राजेवाल ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी देर आए दुरुस्त आए, उन्हां नूं किसानां दे संघर्ष दे मूहरे झुकना पिया है। सारे खुशी दी लहर है, खुशी होनी भी चाहिए है। तुसी जिस तरह कालना काली जिस तरह सारी दुनिया च बैठे लोगों ने इस मोर्चे में सपोर्ट किया, जिस तरह इस देश में बैठे सारे लोगों ने इनू hungaरा दिता, उहदा नतीजा भी अज सरकार नू अपनी गलती मननी पई है। ते फिर भी उहदे लई जो भी गलती देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है उहदे लई उन्हां दा धन्नवाद भी करना बनता है। मैं धन्नवाद करदा, पर हाले साडी तसल्ली नहीं। हुण सुन लैने किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी नूं। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि दुनिया का सब तो वड्डा जिद्दी आदमी झुक गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे उन्होंने कहा कि ये साडे अंदोलन की जित हुई है अते सब तो वड्डा जिद्दी आदमी जिहड़ा अड़िया होया सी उसकी अड़ी है जिहड़ी भन्नी गई है, वो साडे संघर्ष के मूहरे झुक गया है। देश का दुनिया का सबसे हठी आदमी आज झुका है। सभी आंदोलनकारियों को बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके ऊपर मुकदमे हुए, जिनको लठ लगे, सिर पड़वाए, हमारी माताएं बहनें भी आंदोलन में जो है वो आगे रही, उन सभी आंदोलनकारियों को का धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन साथियों, अभी तक MSP पे कोई बात नहीं हुई है। सियासी लीडर की कह रहे ने, बीजेपी के लीडर जाहिर तौर पर अपनी सरकार की शलाघा कर रहे हैं ते विरोधी पार्टियां के लीडर की प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं जां फिर होर बयान दे रहे हैं, वो भी तुहानूं दसदे हां। पहला प्रकाश पुरब दीआं रौनकां ने जिहड़ियां वो भी तुहानूं दिखा दिंदे हां, क्योंकि गुरु नानक साहिब दे प्रकाश दिहाड़े मौके, मुकद्दस दिहाड़े के मौके ये वड्डा ऐलान होया है। पूरी दुनिया दे विच गुरु नानक साहिब का प्रकाश पुरब मनाया गया ते इस बार दुगणियां खुशियां दे नाल मनाया गया। प्रकाश पुरब दीआं खुशियां तां मनाईयां गईयां, नाल ही खेती कानून रद्द होने दीआं खुशियां भी मनाईयां गईयां। लोगों ने वड्डे तौर पर यह मन्निया कि गुरु नानक साहिब पातशाह की मेहर हुई है ते खेती कानून रद्द होए ने। इस जिहड़ी हंकारी सरकार है उसनूं थोड़ी जी सुमत गुरु साहब ने बख्शी है ते उस तो बाद पूरी दुनिया दे विचों ये तस्वीरां सामने आईयां ने जदों गुरु नानक साहिब पातशाह दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित नगर कीर्तन सजाए गए ने, अलौकिक नगर कीर्तन सजाए गए ते करतारपुर साहिब का लांघा भी केंद्र सरकार ने 2 दिन पहला खोलिया है। उस लांघे राही भी संगतां ने
करतारपुर साहिब के दर्शन ने जिहड़े कीते गए ने ते संगत दे विच भारी उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है। गुरु नानक साहिब के प्रकाश दिहाड़े मौके SGPC प्रधान बीबी जगीर कौर और श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने संगतां नूं वधाई दी है। इस मौके आम आदमी पार्टी के वफद ने इल्जाम लाया है कि सानू करतारपुर साहिब नहीं जाण दिता गया, जानबूझ के नहीं जाण दिता गया। 19 नवंबर को गुरु नानक साहिब के प्रकाश दिहाड़े मौके इस वफद ने जाना सी भगवंत मान की अगवाई दे विच, पर पंजाब मामलों के सह इंचार्ज ते विधायक राघव चड्ढा ने दस्सिया कि केंद्र विच मोदी ते पंजाब दे विच चन्नी सरकार की मिली भुगत चल रही है ते इक्को एक उद्देश उन्हां दा आम आदमी पार्टी नूं सत्ता विच आउण तों रोकना है। ये सारियां जिहड़ियां गतिविधियां होईयां ने 19 नवंबर के दिन। सो जिहड़ा आम आदमी पार्टी के वफद ने इल्जाम लाया है उहदे विच की सच्चाई है कि टैक्नीकल तौर के उत्ते इस वफद नूं नहीं जाण दिता गया जां की दिक्कत आई है, ये हुण खोज पड़ताल तो बाद ही पता चलेगा। चन्नी सरकार के सभी मंत्री, सभी MLAs, कांग्रेस पार्टी के सभी MLAs को जाने की परमिशन मिल गई और कुछ MLAs 18 को जा रहे हैं, कुछ 19 को जा रहे हैं, कुछ 20 को जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को परमिशन में कोई परेशानी नहीं आई और मोदी सरकार ने इमीडिएटली पॉलिटिकल क्लियरेंस और सारी परमिशंस कांग्रेस के विधायकों को, MLAs को दे दी। लेकिन आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन, जिसमें हमारे पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भगवंत मान जी, उनकी लीडरशिप में हमारे सारे MLAs पंजाब सूबे के जाना चाह रहे थे, मैं खुद जाना चाह रहा था, हम सबको परमिशन नहीं दी गई और हम सबकी क्लियरेंस चन्नी सरकार और मोदी सरकार ने रोक दी। कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि मोदी सरकार और चन्नी सरकार में एक मैच फिक्सिंग है, एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के तहत ये लोग काम करते हैं। खेती कानूनां ते मुड़ तो आई है तां खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर, जिन्हां दा किसानां दे नाल काफी वाह वास्ता रहा है, संघर्ष दे विच मीटिंगां दे विच शामिल हुंदे रहे ने ते संघर्ष दे बारे समय-समय ते बहुत ही उल्टे-पुल्टे बयान दिंदे रहिंदे ने। उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी शलाघा की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इन्हां सुधारां दे नाल खेती दे विच बदलाव लियाउण दी कोशिश की सी, पर कुछ कारणों करके कुछ किसानां ने विरोध किया। कहते असी गलबात राही किसानां नूं समझाउण दी कोशिश की पर असी सफल नहीं होए। इसलिए प्रकाश पुरब के मौके ते प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हां कानूनां नूं वापस लैण दा फैसला लिया है, जो कि एक स्वागती कदम है। प्रधानमंत्री 3 खेती बिल लैके आए सन जिन्हां नूं संसद ने पास किया सी। इन्हां पिछे प्रधानमंत्री का स्पष्ट इरादा किसानां दे जीवन विच क्रांतिकारी बदलाव लैके आउणा सी, पर कहंदे मैनूं दुख है असीं देश के कुछ किसानां नूं इन्हां कानूनां दे लाभ समझा नहीं सके। मोदी जी के नेतृत्व में कृषि को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अनेक नई योजनाएं आरंभ की गई, जिनका लाभ आज किसानों को मिल रहा है। वर्षों से प्रतीक्षा थी MSP को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया, इसका लाभ किसानों को मिल रहा है और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। मैं इस अवसर पर उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर, कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, किसान संगठनों ने इन लाभों को समझाने की कोशिश की। मैं निश्चित रूप से उनका बहुत आभारी हूं। यानी कि मोदी सरकार मन्नी भी है, पर कहते हुंदे ना कि मींगना घोल घोल के तुसी मन्ने हैगे हो। हुण भी शब्द ने जिहड़े उही वरते जा रहे ने, मन्ने भी हाँ ते कुछ किसानां करके मन्ने आ। जे गिणती थोड़ी जी हुंदी तां फिर सरकार क्यों मनदी है, समझण दी बड़ी वड्डी लोड़ है कि जिहड़े बयान दिते जा रहे ने वो बड़े ही चलाकी वाले बयान ने। सरकार झुकी भी है पर झुकना भी नहीं चाहती। इस तरह के हालात ने जिहड़े सरकार दे बने ने, पर पते दी गल यह है कि सरकार नूं झुकना पिया है। पूरी दुनिया दे विच सरकार दी पिठ लगी है, किसानां दे संघर्ष करके लगी है, क्योंकि हुण तक सरकार अपनी जिद उत्ते सी। पूरी दुनिया दे विच बथेरियां जिहड़ियां दुनिया दीयां पार्लीमेंटां ने उन्हां दे विचों भी आवाज़ उठी सी कि मोदी सरकार किसानां दी गल सुणे। बड़ियां वड्डियां कौमांतरी शख्सियतां ने मंग कीती सी,
पर मोदी सरकार ने हमेशा ये कहा कि साडे कानून सही ने, हुण भी कह रहे हैं कानून सही ने पर कुछ किसानां करके असीं रद्द कर रहे हैं। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी तिन्ने खेती कानून रद्द करन ते मोदी सरकार का धन्नवाद किया है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक साहिब के प्रकाश पुरब मौके लिया गया यह फैसला स्वागतयोग है। मैं भारत सरकार का खास तौर के उत्ते प्राइम मिनिस्टर साहब का, उन्होंने समुची कैबिनेट का तह दिलों बहुत धन्नवाद करदा कि उन्होंने एक आने वाले समय दे विच साडे ते जिहड़ी कौमी विपता जिहड़ी सानू दिखाई दे रही सी कि जिस किस्म का माहौल बन रहा आएगी उन्होंने टालिया, क्या कह दीए कि अकाल पुरख की किरपा नालों टली है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार वालों खेती कानूनों नूं रद्द करन दे फैसले नूं पंजाब के किसानां दे संघर्ष की जित दस्सिया है। चन्नी ने कहा कि 3 काले कानून रद्द करन दा फैसला जिहड़ा वो मोदी सरकार दा वो पंजाब के किसानां वालों शुरू किए गए लंबे शांतमई संघर्ष की जित है। अन्नदाता नूं मेरा सलाम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मुख्यमंत्री चन्नी ने, कहंदे सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या आए। जदों ये कानून आर्डीनेंस की शक्ल दे विच आए सी उदों ही समझ लेना चाहिए सी कि देश के लोग इस नूं पसंद नहीं करनगे। फिर भी इस मामले नूं इन्ने लंबे समय तक लटकाया, मोदी सरकार ने लटकाया। उन्होंने बिल्कुल मोदी सरकार का धन्नवाद नहीं किया, कहा कि लोकतंत्र ते लोक शक्ति की जित है। पंजाब कहते खेती प्रधान सूबा है, पंजाब की खेती नूं कमजोर करने की साजिश तो सरकार नूं पिछे हटना पिया, सरकार नूं झुकना पिया है। खेती कानून वापस ले जाने का सिर्फ ऐलान किया गया, जदों संसद विच रद्द होणगे उदों देखांगे। यानी कि मोदी सरकार ते प्रधानमंत्री के कहण ते यकीन 100% नहीं हो रहा लोगों को। बिल्कुल संघर्ष की जित दसी जा रही है पर 100% यकीन नहीं कर पा रहे लोग सरकार का रिकॉर्ड देखते हुए। मुख्यमंत्री चन्नी ने मांग की है कि कानून रद्द करने का बिल लिया जाए तो MSP का कानून भी लिया जाना चाहिए है। मुख्यमंत्री चन्नी ने भी मांग की है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं भी प्रधानमंत्री के ऐलान तो बाद दिल्ली सरकार वालों इन्हां कानूनों बारे जारी किया गया नोटिफिकेशन वापस ले लेना चाहिए। सरकार ने बिना संसद दे विच उचित वोटिंग के कानूनों नूं पास करवाया सी पर आखिरकार वापस लेना पिया, क्योंकि संसद दे विच जिस तरीके दे नाल ये कानून पास होए सी वो आपां नूं सारिआं नूं पता है कि किस तरीके दे नाल किस जिहड़ी नीयत दे नाल इन्हां नूं पास करवाया गया सी। वो कहंदे भी सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। बहुत बड़ियां कीमतां किसानां नूं खेत मजदूरां नूं इन्हां बिना दे मुआवजे विच तारनियां पईयां। ये जदों ऑर्डीनेंस ही बने सी समझ आ जानी चाहिए सी कि देश के लोग इन्हां नूं स्वीकार नहीं कर रहे, ये नुकसानदेह है। लेकिन एक जिद करके इन्हों अगे लटकाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हों रोक लगाती, फिर भी इन्हों लमकाया गया। अखीर तक पूरा किसानां दा, मजदूरां दा, लोकां दा कहते भी अंत देख के जिस तरह मच्छी पत्थर चट के मुड़दी है उस तरह मोड़ा पाया गया। जदों चोणां आ गईयां, यूपी दे विच हार निश्चित हो गई, किसानां दियां शहीदियां हो गईयां ते किसान टस मस्ते नहीं होए, मजदूर मारे गए, लोकां दे विच त्राह हो गई, टोल प्लाजे बंद हो गए। पंजाब सरकार बिल्कुल नाल किसानां दे खड़ गई। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी प्रधानमंत्री मोदी दे वल्लों 3 खेती कानून वापस लैण ते खुशी का प्रगटावा किया। उन्होंने कहा कि प्रकाश दिहाड़े मौके ये किसानां दी वड्डी ते इतिहासिक जित है। मैं किसानां नूं देश के किसानां नूं ते खास करके पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसानां नूं लख लख बधाई देना कि उन्हां दी कुर्बानी दी वजह नाल बड़े बड़े संघर्ष तो बाद उन्होंने सरकार नूं झुकाउण दा मौका मिलिया ते जिहड़े
काले कानून हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी सरकार ने बनाए थे, उन्होंने अज वापस लेने पे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार के फैसले तो पता चल गया कि जनता के सामने किसी भी पार्टी का हंकार नहीं चलेगा। अज सारिਆਂ ਦੀ जित हुई है। केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने अंदोलन ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ भी की सी। इस मौके आम आदमी पार्टी पंजाब के सारे वलंटियर ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ किसानों के जश्न ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होणगे। ऐलान किया गया आम आदमी पार्टी पंजाब ने ते केजरीवाल का ਜਿਹੜਾ दौरा किया जा रहा सी पंजाब का दौरा वो मुलतवी कर दिता गया ते हुण अरविंद केजरीवाल 22 तरीक नूं पहुंचणगे। पहला उन्होंने 20 तरीक नूं पहुंचना सी। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। कांग्रेस के कौमी लीडर राहुल गांधी ने कहा कि देश के अन्नदाता ने हंकार का सिर झुका दिता है। बेइंसाफी खिलाफ ये जित मुबारक होवे। यानी कि कोई भी लीडर प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी सरकार का धन्यवाद नहीं कर रहा, किसानों की जित दस्या जा रहा है। आई एम very proud of what the farmers are doing and I fully support the farmers and I will continue to stand with them. I raised their issue in a yatra in Punjab and we will continue to do it. Mark my words, take it from me, these laws the government will be forced to take them back. पर एक लीडर हैगे ने जेडे प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। पंजाब के साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने इस फैसले के लिए मोदी का धन्यवाद किया ते नाल ही ANI दे नाल गलबात की है। कहते हुण बैठण का की फायदा, क्योंकि किसानों ने ऐलान कर दिता कि जो तक संसद च रद्द नहीं होंदे उदों तक जावांगे नहीं। पर कैप्टन साहब कह रहे हैं कि हुण मोर्चियां दे विच बैठण का कोई फायदा नहीं। हर खेतर की अपनी खेतीबाड़ी है। APMC वर्गे कानून सिर्फ पंजाब ते शायद हरियाणा विच लागू ने, इन्हां दा होर किसी सूबे ते प्रभाव नहीं सी। पंजाब ने ज़्यादा प्रतिक्रिया दी क्योंकि इस ते ज़्यादा असर पैना सी, इस करके मोदी ने कानून वापस ले लए ने। कहते मैं 3 महीनों तो कहता रहा, मैं क्या सी किसानों का मुद्दा पहला आउंदा है, फिर ही असीं तुहाडे नाल सीटां सांझियां करांगे। प्रधानमंत्री ने माफ़ी मंग ली है। हुण सवाल यह है कि संसद का इजलास कदों हुंदा है। ये अज तो 10 दिनों बाद बैठेगा, बिल लिआंदा जाएगा, कानून वापस ले जाएंगे, मसला खत्म हो जाएगा, फिर उत्थे बैठन का कोई मतलब नहीं बनता। यानी कि कैप्टन कह रहे हैं कि तुसीं भी आ जाओ, मोदी वाली बोली है जिहड़ी वो बोली जा रही है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा काले कानूनों नूं रद्द करना सही दिशा दे विच सही कदम है। किसान मोर्चे के संघर्ष नूं इतिहासिक सफलता मिली है। सिद्धू ने कहा कि रोड मैप राही पंजाब दे विच खेती नूं मुड़ सुरजीत करना पंजाब सरकार की प्रमुख तरजीह, पहली तरजीह होनी चाहिए है। जिस सतगुर नदर अज ओदी सवली नदर होई है ते हवावां च खुशियां ने, दीवानगी दी खुशी है। क्यों? एक लांघा खुला, लांघे दे नाल असंख्य संभावनावां खुलणगियां ते जे मैनू चंगे भाग दिते परमात्मा ने ते मैं उत्थे जाके असल पंजाब दी जिहड़ी तरक्की दी राह है ਉਹਦੇ बारे गल जरूर करांगा। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा मैं हर किसान को बधाई देनी हाँ जिसने लड़ाई लड़ी तो बीजेपी के वरतारे अगे हो मट्ठे नहीं पे, ढिले नहीं पे, बल्कि बीजेपी नूं झुका दिता है। कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने कहा 3 काले खेती कानून रद्द, लखां मुजाहरा कर रहे किसानों का धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह ने कहा है कि किसानों नूं वधाई होवे, देश के अन्नदाता नूं वधाई होवे जिन्हां दे संघर्ष ने ऐतिहासिक जित हासिल की है। किसानों ने पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत सारे देश के किसानों ने इस संघर्ष दे विच योगदान पाया। पर बीजेपी के लीडर हरजीत गरेवाल की कह रहे हैं जिन्हों ने बहुत टिप्पणियां कीतियां ने हुण तक किसानी संघर्ष से। उन्होंने कहा कि किसी की जित किसी की हार नहीं है। इन्हें कहा कि बहुत वधिया फैसला लिया सरकार ने, किसानों के अंदोलन खत्म ना करन ते कहा कि हुण असली किसान इन्हां दीयां गल्लां दे विच नहीं आउणगे। गरेवाल ने कहा कि खेती कानून किसानों की समझ नहीं पे पर साडे ये दिलां दे विच रहणगे। किसान खुद ये 3 कानून मंगणगे। ये उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आऊगा कि किसान ये खेती के 3 कानून खुद मंगणगे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने कहा कि सिर्फ चोणां नूं देखते हुए लिया गया फैसला है।
ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। यानी कि कानून वापसी का फैसला सिर्फ एक जुमला है। यानी कि इन्हों लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दे के उस तो बाद मुकर भी सकते हैं। प्रियंका गांधी ने भी यही कहा है कि मोदी सरकार की नीयत ते विश्वास करना औखा है। कहते हुण चोणां दे विच हार नज़र आउण लगी है, तुहानूं अचानक इस देश की सच्चाई समझ आउण लगी है। 600 तो वध किसानां दी शहादत, 350 तो वध दिनां दा संघर्ष, मोदी जी तुहाडे मंत्री दे पुत्तर ने किसानां नूं कुचल के मार दिता, तुहानूं कोई परवाह नहीं सी। एक ट्वीट तक नहीं कीता सी प्रधानमंत्री मोदी ने, हाले तक उन्हां किसानां दे कुचले जाण ते दुख नहीं जताया मोदी जी ने। ये एक सच्चाई है। कहते तुहाडी पार्टी के लीडरां ने किसानां दा अपमान करते हुए उन्हां नूं अतवादी, देशद्रोही, गुंडे कहा, तुसीं खुद अंदोलन जीवी कहा ते उन्हां उपर लाठियां भराइयां, उन्हां नूं गिरफ्तार किया। हुण चोणां विच तुहानूं हार नज़र आउण लगी है तां अचानक इस देश की सच्चाई है जिहड़ी ओह तुहानूं समझ आउण लगी है कि देश किसानां ने बनाया, ये देश किसानां दा है, किसान ही इस देश का सच्चा रखवाला है। कोई सरकार किसानां दे हित नूं कुचल के इस देश नूं नहीं चला सकती। हुण गल करते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह दी। उन्होंने जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के फैसले की शलाघा की, कहा कि एक स्वागत योग सियासी कदम है। श्रोमणी अकाली दल के बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने 3 खेती कानून रद्द होने के फैसले बारे कहा कि बहुत चंगा फैसला है ते इन्होंने कहा कि अकाली दल का पहले दिन तो ही ये स्टैंड सी, असी हर बारी खेती कानून रद्द करने का सुझाव दिता है। मैं केंद्र सरकार को कहना चाहता कि MSP की गारंटी भी तय करो कि 3 खेती कानून इस पार्लीमेंट दे विच रद्द किए जाणगे। मैं समझदा कि ये जिहड़ा फैसला है एक बहुत चंगा फैसला। श्रोमणी अकाली दल का पहले दिन तो ही ये स्टैंड सी। जदों पार्लीमेंट विच असीं विरोध किया उदों भी यही सुझाव दिता सी, जदों कैबिनेट दे विचों अस्तीफा दिता उदों भी यही सुझाव दिता सी, जदों NDA दे नालों नाता तोड़िया उदों भी साडा यही कहना सी कि 3 कानून जिहड़े आ ये रद्द किए जाने चाहिए। और ये मैं समझदा कि अज लोकतंत्र की बहुत वड्डी जित है, किसानी संघर्ष की बहुत वड्डी जित है और 700 तो ज्यादा किसान जिहड़े शहीद होए उन्हां दा इस प्राप्ति वास्ते बहुत वड्डा योगदान। और मैं केंद्र सरकार ने भी कहना चाहुंदा कि हुण MSP की जिहड़ी गारंटी है वो भी सारे देश की किसानी नूं उन्हां नूं इंश्योर करनी चाहिए है। मैं समझदा कि इहदे नाल एक बहुत अच्छा माहौल जिहड़ा देश दे विच बनेगा। लुधियाना पहुंचे कांग्रेस मामलों के इंचार्ज हरीश चौधरी, उन्होंने कहा कि PM मोदी ने कानून तो वापस लैण का ऐलान किया पर जिस अंदाज दे विच कीता है वो सानू पसंद नहीं आया हैगा। ते उन्होंने इतराज़ जताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिहड़े वो कह रहे ने कि कुछ किसानां नूं इसकी समझ नहीं लगी, असीं किसानां नूं समझा नहीं सके हैगे, इसलिए असीं माफ़ी मंगदे हां। देश के अर्थशास्त्रियों की गल कर लईए तो गुरचरण दास एक अर्थशास्त्री ने, उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल नाल इस सियासत की जित हो गई है, अर्थव्यवस्था की हार हुई है। यूपी विच चोणां आ रही ने तो लोग डर गए कि किसान नहीं मन रहे तो इन्हां ने ये फैसला ले लिया। इस फैसले तो मैं बहुत हैरान हाँ, दुखी हाँ, मायूस हाँ, मैनूं दुख होया क्योंकि पंजाब के किसान की जित नहीं हार है, उस तो बाद देश की भी हार है। अर्थशास्त्री ने कहा कि मोदी लोगों को समझाउण विच असफल रहे ने पर मोदी की इमेज नूं तां धक्का लग्या, यानी कि ये चाहुंदे सी कि खेती कानून लागू होने चाहिए ने ते किसानां दे लई सही हैगे ने। ऑल इंडिया मजलिस ए इतिहादुल मुस्लिमीन दे प्रधान जिहड़े हैगे ने असाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद तो सांसद भी हैगे ने, MP हैगे ने, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दे कोल होए कोई ऑप्शन बची ही नहीं सी, कोई विकल्प बचा ही नहीं सी। उन्होंने शेर लिखा है, कहते दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे कलाम आते हैं दरमियाँ, कैसे कैसे जमीन चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं जान गवाउण वाले किसानां दे परिवारां तो भी माफ़ी मंगनी चाहिए है। हुण जे उन्हां दे दिमाग दे विच समझ आ गई है कि उन्होंने गलत किया है तां ओह उन्हां दे परिवारां तो भी माफ़ी मंगण, क्योंकि BJP के बहुत सारे लीडरां ने इन्हां किसानां दे परिवारां नूं अतवादी दस्सिया सी, इन्हां दा बहुत अपमान कीता सी। नाल ही उन्होंने किसानां
ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ। ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿੱਠ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਹੈ। छत्तीसगढ़ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, यूपी ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 100% ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ, ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਸਤਾਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਝਾੜਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਫੀ ਧੀਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਮੌਗ ਬਣ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਕਹੀਣ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।